Good morning, students. In the last video of class 12th accountancy, we discussed calculation of profit when any partner dies. There are basically two methods of calculation of profit when any partner dies, that is time method and the turnover and sales method. According to time method, profit is calculated on the basis of following formula, that is the previous year profit or average profit into months divided by 12 or days divided by 365 into his share of profit. Because months and days will be calculated on the basis of from the beginning of the accounting year till the date of his death, and his share of profit denotes the profit sharing ratio of deceased partner. According to sales and turnover method, profit is calculated by the following formula. The formula is profit of previous year, that is divided by profit of turnover of previous year multiplied by current year turnover. So this formula is totally based on the sales and the profit elements of the previous year. So this formula is based on profit of previous year divided by turnover of previous year into current year turnover. Current year turnover is taken from the beginning of the current year till the date of his death. Suppose any partner dies on 13 June, so the sales of current year taken from the 1st April to 30 June. So the current year turnover means the turnover or sales from the beginning of the accounting year till the date of his death, and multiplied by his share of profit. His share of profit means the profit sharing ratio of deceased partner. What are the accounting treatment of profit when any partner dies? So there are basically two situations related to the recording of profit in case of when any partner dies. The first case is when new profit sharing ratio of remaining partner does not differ from their old profit sharing ratio. It means कि जब old profit sharing ratio और new profit sharing ratio continuing partner का same होता है. For example, XYZ are three partners, उनका old ratio है 1:1:1 and the new ratio is 1:1 between X and Y आफ्टर Z डाइज. यानी जब Z डाइज होता है, Z की डेथ होती है, सो X और Y का न्यू रेशियो भी 1:1 होता है. इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट शुड बी adjusted through profit and loss suspense account. In case of profit, the entry will be profit and loss suspense account debit to deceased partner's capital, and in case of loss, deceased partner capital account debit to profit and loss suspense account. But the second situation related to the change in profit sharing ratio. When NPSR of remaining partner differ from their old profit sharing ratio, it means XYZ old profit sharing ratio is 1:1, and when Z dies, the new profit sharing ratio of between X and Y, that is 2:1. So it is different from their old profit sharing ratio. Old profit sharing ratio between X and Y, that is 1:1, but the new ratio between X and Y, that is 2:1, so it will be changed. So in this situation, we record the profit same as the goodwill. The entry of the profit of recording goodwill, that is gaining partner's capital account debit to deceased partner capital account in case of profit, and in case of loss, the deceased partner's capital account debit to gaining partner's capital, and the truly based on this adjustment is truly based on the profit sharing ratio. Gaining ratio. Okay. So after the discussion of calculation of profit, let's we move to the some of the important practical problem. And first of all, before the solving of practical problem, the most important part is required to know for you, that is all the adjustment related to the revaluation of assets and liabilities. Number 2, accounting treatment of goodwill. Number 3, accounting treatment of reserve, accumulated profit and accumulated loss. Accounting treatment of payment to the retiring partner is same as we discussed in the
चैप्टर रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर, यानी जैसा जब पार्टनर कोई रिटायर होता था तो उस सिचुएशन में जैसे हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते थे, जैसे हम गुडविल का एडजस्टमेंट करते थे, जैसे हम जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस का एडजस्टमेंट करते थे, जैसे हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को पे करते थे या इमीडिएटली कैश में दे देते थे या लोन में ट्रांसफ़र कर देते थे, सेम एज इट इज़ वैसे ही प्रोसेस हम डेथ के केस में भी कैलकुलेट करते हैं। बट इसमें एक एडिशनल कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है, दैट इज़ द प्रॉफिट एंड बिकॉज यू नो वेरी वेल कि डेथ की डेट डिसाइड नहीं होती है, इन सो दैट जब कोई पार्टनर डेथ करता है तो जनरली वो अकाउंटिंग ईयर के मिड में डेथ करता है। सो हम उसको फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ तक के लिए, यानी जितने महीने जितने डेज वो फर्म में रहता है एज अ पार्टनर, उतने दिन के हम उसको प्रॉफिट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर PSR सेम होता है सो सिचुएशन में PL सस्पेंस की हेल्प से देते हैं, और अगर पार्टनर जो होता है कि का जो रेशियो है वो चेंज होता है, सो सिचुएशन में हम गेनिंग पार्टनर्स के बेसिस पे उसको प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं, यानी जैसे गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपके मन में ये सारी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि आपको किसका एडजस्टमेंट कैसे करना है। सो आई होप कि ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट हमने आपको बता दिए हैं। लेट्स वी मूव टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डेथ ऑफ अ पार्टनर। This practical problem is illustration number 51. The question is A, B, C were partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2. On 31st March 2003, their balance sheet was as under. Liabilities, creditor 11,000, reserve 6,000, A's capital 30,000, B's capital 25,000, C's capital 15,000, that is total capital is 70,000 and total liability side is 87,000. In the asset sides, building 20,000, machinery 30,000, stock 10,000, patents 11,000, debtors 8,000, cash at bank 8,000. A died on 1st October 2003. It was agreed between his executor and the remaining partner that, यानी सिचुएशन में कह रहा है कि A, B तीन पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 5:3:2, उनकी कैपिटल है, उनकी एसेट्स हैं, वॉट एवर है। ए डाइट कर रहा है 1 अक्टूबर 2003, 1 अक्टूबर 2003 में डेथ कर जा रहा है। तो आप कहते हैं ना, ऐसे ही काउंट कर लोगे कि कितने महीने वो रहा फॉर्म में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर है तो काउंट तो होगा नहीं, यानी उसका जो पीरियड है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, सो इन दिस सिचुएशन योर पीरियड इज 6 months फ्रॉम अप्रैल to September. It was agreed between his executor, क्या क्या प्रोवाइड करने की बात हुई। The first point is goodwill to be valued at 2.5 year purchase of average profit of the last 4 year, यानी लास्ट 4 ईयर के बेसिस पे हम गुडविल प्रोवाइड करेंगे, यानी उसका एवरेज निकालेंगे, देर आफ्टर उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी गुडविल। सेकेंड, पेटेंट बी रिवैल्यूएटेड 8,000, तो पेटेंट की वैल्यू पहले कितनी थी 11,000, अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000, सो इट इज़ अ लॉस एंड यू नो वेरी वेल लॉस को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड, मशीनरी एट 28,000, मशीन 28,000 पे हो गई, पहले मशीन कितने की थी 30,000, सो ये भी लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया 2,000 का, तो पेटेंट पे हुआ 3,000 का लॉस, मशीनरी पे हुआ 2,000 का लॉस। एंड बिल्डिंग एट 25,000, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 25,000, बिल्डिंग की पहले वैल्यू कितनी थी सर ओनली 20,000। ओके, सो इट इज़ अ प्रॉफिट, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट पार्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2003 and 4 टू बी टेकन हैव एक्रूड एट द सेम रेट एज द प्रीवियस ईयर, एज ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि हमें जो डेथ, जो पार्टनर की डेथ हुई यानी ए की जो डेथ हुई है उसे जो हमें प्रॉफिट देना है कब से कब तक का, अकाउंटिंग ईयर बिगनिंग यानी 1 अप्रैल, कब तक, उसके डेथ यानी 1 अक्टूबर, यानी 6 मंथ का जो मुझे उसे प्रॉफिट देना है वो किस बेसिस पे देना है, दैट इज़ द लास्ट ईयर प्रॉफिट। लिखा हुआ है प्रॉफिट जो है 2003 and 4 का, तो 2003 and 4 की प्रॉफिट जो है वो क्या है, इट इज़ 15,000। सो द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विल बी टेकन एज अ बेस फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉफिट टू द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द फर्म, दैट इज़ द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2003 and 4, दैट इज़ 15,000. Interest on capital
बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम. ओके, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है. यू नो वेरी वेल, इट इज़ अ वेरी केयरफुली point because interest on capital is provided 10% per annum. So interest on capital is also provided for 6 month. You know, जिस परसेंटेज के आगे पर मंथ लगता है, पर एनम लगता है, सो उसमें हम पीरियड भी काउंट करते हैं. तो फॉर्म में कितने महीने उसकी कैपिटल रही होगी, 6 मंथ. तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितने महीने रहा होगा, 6 मंथ का. गॉट इट? मीन्स वो कब से कब तक फॉर्म में रहा, 6 मंथ के लिए. तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, लेकिन कितने महीने के लिए मिलेगी, 6 मंथ के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द ए टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, दैट इज एग्जीक्यूटर अकाउंट. यू नो वेरी वेल, जब कोई पार्टनर डेथ करता है तो पहले हम डिसीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एज लाइक एज इट, जैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं. बट डेथ के टाइम में हम सबकी कैपिटल प्रिपेयर नहीं करते, सिर्फ उसी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसकी डेथ होती है. पार्ट नंबर 1. नंबर 2, जो उसके कैपिटल में बैलेंस आता है, ठीक है, उसको हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि अब उसको तो पैसा मिलने वाला नहीं है. सो दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट. एग्जीक्यूटर मीन्स हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे कर देते हैं. फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम उसको कैश में पे करते हैं या लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. तो दे आर बेसिकली 3 स्टेप्स. द फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. नंबर 2, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, इट विल बी ट्रांसफर टू द डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट. एंड देयर आफ्टर एग्जीक्यूटर अकाउंट से या तो हम एग्जीक्यूटर को फुल पेमेंट करते हैं, या तो पार्शली पेमेंट करते हैं, या तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. इट वॉज ऑलरेडी डिस्कस इन द previous topic. So what is the question is asking about the prepare A's capital account and A's executor account on 1st October 2003. आपको A की कैपिटल अकाउंट यानी डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनानी है, एंड देयर आफ्टर आपको A का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है. उससे पहले हम लोग ई पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो A का हाफ पेमेंट है, A को जो मुझे देना है उसका हाफ पेमेंट हम उसको तुरंत दे देंगे इमीडिएटली, और आधा पैसा एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. ओके, सो अब इस कैपिटल अकाउंट से पहले हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं. सो यू नो वेरी वेल, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम बनाएं, फॉर्मेट इज सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो पेटेंट्स पे लॉस हुआ था 3000 का, मशीनरी पे लॉस हुआ था 2000 का. सो बिल्डिंग पे 5000 की प्रॉफिट हुई थी. सो अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किए तो वी फाइंड दैट प्रॉफिट इज़ 5000 एंड लॉस इज़ ऑल्सो 5000. सो देयर इज़ अ नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करने पे ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है, यानी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे गुडविल का, प्रॉफिट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्योंकि these element are credited in the deceased partner capital account. गुडविल कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर देंगे. किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे. सो इन दिस सिचुएशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. ए बी सी का ओल्ड रेशियो है 5:3:2, और ए के डेथ हो जाने के बाद अब न्यू रेशियो 3:2 है. सो न्यू रेशियो भी 3:2 है और गेनिंग रेशियो भी 3:2 है. तो गेनिंग रेशियो के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 3:2 गुडविल के लिए. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इस क्वेश्चन में PSR चेंज नहीं है. सो डिसीज पार्टनर को जो हम प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से पे करेंगे. वंस अगेन आई रिपीटेड दिस सेंटेंस, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो ऑफ continuing partner is same because there is no information about the new ratio. So old ratio between B and C, that is 3:2, as well as the new ratio between B and C, that is 3:2, and the gaining ratio is also same between B and C, that is 3:2. यानी जो न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो है, सब B और C का 3:2 है. सो 3:2 में ही हम गुडविल प्रोवाइड करेंगे किसको, A को. You know very well when any partner dies, so the remaining partner provides a compensation to the deceased partner in the form of goodwill in their gaining ratio. Second important part, when new profit sharing ratio between continuing partner is same as the old profit sharing ratio between the old partner, in this situation profit provided
to the deceased partner from the beginning of the accounting year till the date of his death through profit and loss suspense account. So आपको यहाँ पे प्रॉफिट को पीएल सस्पेंस से देना है और गुडविल प्रोवाइड करने के लिए 3:2 रेशियो का यूज़ करना है. ओके, सो हम लोग गुडविल के कैलकुलेशन पर चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट, दैट इज 13,000, 12,000, 20,000, 15,000 and total profit is 60,000. Thereafter the second step is calculate average profit. How we will calculate the average profit? The formula of average profit is total profit divided by number of year, that is 60,000 divided by 4, that is 15,000. So what is the formula of goodwill of average profit method? That is goodwill equals to average profit into number of year purchase. Okay sir. So first of all we calculate total profit and thereafter we calculate average profit. Next part, the goodwill. Goodwill formula is average profit in multiplied by number of year purchase according to average profit method. So the total goodwill of the firm is 37,500. How? 15,000 multiplied by 2.5. This is 37,500 is the total goodwill of the firm. And you know very well, first of all we calculate the A share of goodwill. And what is the old ratio between A, B and C? That is 5:3:10. That is 5:10, 3:10 and 2:10. So old ratio between A, B, C, that is 5:3:2. So old ratio of A, that is 5:10. So the A share of goodwill is 18,750. So A को goodwill कितना मिलेगा? 18,750. And you know very well, it will be adjusted into capital account of B and C in the gaining ratio of 3:2, and this amount is provided by B and C in their gaining ratio, and gaining ratio is 3/5 and 2/5, and it will be credited in deceased partner capital account by B's capital, by C's capital. Okay, second important part, that is profit. You know profit is the same as the previous year, that is 2003, that is 15,000. You know this is basically there's a no information about the previous year sale, previous year profit, current year sales. You know very well there are basically two method of calculation of profit, that is time method and turnover method. दो method हमारे पास हैं, time method और turnover method. Turnover method को हम तभी use कर सकते हैं when there's an information given in the question regarding previous year profit, previous year sales and current year sales from the beginning of the year till the date of his death. But in this question we have no information about the sales and profit. So in this question हम profit को turnover method से solve नहीं कर सकते. आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि सर दो मेथड है, हम टर्नओवर से क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है. अब रही बात है टाइम मेथड की, तो हमारे पास टाइम के लिए प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन गिवन है. What are the formula of calculation of profit through the time method? So you know very well, the formula is previous year profit into months upon 12 into his share of profit. In this question you can see it, the previous year profit is 15,000. 15,000 previous year profit है, एंड वो कितने महीने तक फॉर्म में रहा है? 1 अप्रैल to 1 अक्टूबर. सो द पीरियड इज 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, that is 6 months. Account is not, October is not countable because the date is 1st October. So the beginning of the month, so it will be not counted. So 6 months into his share of profit is 510. You know the old ratio of ABC, that is 5:3:2. So the old ratio of A, that is 510. So with the help of this formula,
3,750 rupees. So let's take it. Yes, it is correct. Share of profit payable to A according to time method up to the date of death, that is 15,000 into 6 by 12 into 5 by 10, that is 3,750, and this profit is provided through PL suspense account because of the new ratio between remaining partner and the old ratio between B and C is same. ओके सो हम लोगों ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस कर लिया, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्कस कर लिया. यस सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आया. उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, दैट इज़ गुडविल, पेटेंट्स, रिवैल्यूएशन का पार्ट तो पहले ही हो चुका है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. अब रही बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो यू नो वेरी वेल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें कितने महीने का देना है, 6 मंथ का देना है. एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल, दैट इज़ 30,000. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, 30,000 इंटू 10% इंटू 6 by 12. वाई 6 by 12? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड फॉर 6 month फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ. That is 1500. The interest on capital provided by the firm to Ace Capital on Ace Capital, that is 1500. So this is the important part. So let's get started the deceased partner capital account. First of all देखिए, deceased partner की capital account बनाने से पहले आप मन में एक बात एकदम रख लीजिए कि इन दिस कैपिटल अकाउंट हमें सबका कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, ए बी सी तीनों का नहीं बनाना है, क्योंकि डेथ ए की हुई है तो ए का ड्यू अमाउंट निकालना है, क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर का एंड नहीं है, ये चल रहा है 1 अक्टूबर को. हम जो बना रहे हैं ए की कैपिटल अकाउंट, वो हम उसकी डेथ के डेट बनाते हैं कि डेथ के टाइम उसे कितना पैसा देना है हमको, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ उसकी कितनी कितनी ड्यूज़ फर्म के ऊपर हैं, यानी उसे फर्म से कितना लेना है और फर्म को कितना देना. उस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट अमाउंट कि ए को कितना देना है या उससे कितना लेना है, बेसिकली ये कैलकुलेट किया जाता है. सो यहाँ पर हम सिर्फ ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यानी इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट में अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम रहेगा, यानी ए बी सी तीनों कॉलम नहीं रहेंगे. दूसरी बात, कैपिटल अकाउंट का रूल वही रहेगा, ओपनिंग बैलेंस रिजर्व है उसको बांटेंगे, तो वो सारी चीज़ें सेम रहेगी जैसे करते हैं. अब इसमें बैलेंस शीट में आप देखिए एक रिजर्व पॉइंट भी है, दैट इज़ 6,000. सो ये रिजर्व भी ए को मिलेगा उनके ओल्ड रेशियो में, सो सिर्फ ए को मिलेगा, बाकी बी और सी के लिए बच जाएगा. सो ए को रिजर्व कितना मिलेगा, 3,000. सो बेसिकली ए का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो गए. सो लेट्स डिस्कस इट. द एस कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल, write down the Ace capital in the format particulars amount, because we prepared only one partner's capital account, that's why the amount column is related to A only. The opening balance, that is 30,000. Reserve, you know very well, it is already discussed, 6,000 into 510 in their old ratio. And B's capital and C's capital, you know, goodwill, amount of goodwill, 11,250 given by B as a goodwill. 18,750 is the total goodwill calculated for the B, calculated for the A, and it will be provided by B and C in their gaining ratio, that is 3:2. So B provided a goodwill to A, that is 11,250, and C provided a goodwill 7,500. 18,750 का 2/5. And you know, profit and loss suspense account, that is 3,750. ये भी पहले हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है. एज वेल एज वी कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन 1,500 प्रोवाइडेड बाय फर्म टू ए. सो टोटल अमाउंट कितना उसको मिल रहा है, 30,000 कैपिटल का, 3,000 रिजर्व का, 11,250 गुडविल का बी से, और 7,500 सी से मिल रहा है, 3,750 प्रॉफिट का मिल रहा है, एंड 1,500 मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. टोटल अमाउंट ए को उसकी डेथ पे देना है 57,000, एंड दिस अमाउंट ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट. दैट्स वाई आई सेड
कि ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. So the remaining balance appeared in A's capital, that is 57,000, immediately transferred to his executor account, that is 57,000. And after that we followed this instruction given in the question, that is half of the amount due to A is to be paid immediately. यानी 57,000 का हाफ अमाउंट $28,500 इमीडिएटली पे कर दो कैश में, और बाकी पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो. सो इट इज़ वेरी इजी. सो आफ्टर डैट वी प्रिपेयर्ड एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जिसमें ए की कैपिटल से कितना आया, इधर था बना था तो वो इधर आया एज पर एज लोन अकाउंट की तरफ. सबसे पहले हमने माना एज कैपिटल 57,000 एंड इमीडिएटली हमने बैंक से कितना पे कर दिया 28,500 एंड द बैलेंस अमाउंट इज ट्रांसफर टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट. यानी डिसीज पार्टनर की कैपिटल में जो पैसा आया उसे हमने डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र किया. फिर डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर में जो पैसा हमें देना था वो हमने देकर फिर डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफ़र कर दिया. बिकॉज जो पर्सन मर गया है उससे तो हम लोन ले नहीं सकते ना, उसका कोई पैसा मेरे पर ड्यू है तो मैंने उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कर दिया, भाई हम आपको देंगे. उसमें से फॉर्म ने आधा पैसा इमीडिएटली दे दिया और कहा आधा पैसा लोन की तरह रख लो, मतलब तुम ये मान लो कि तुमने हमको लोन दिया है, आफ्टर सम टाइम हम आपको वो लोन चुका देंगे. एंड यू नो वेरी वेल कि जितना टाइम लेट करेगी फॉर्म उस लोन को चुकाने में, उस पे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट भी चार्ज हो. सो बेसिकली आज हम लोगों ने डेथ ऑफ ए पार्टनर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया. ओके, सो एट द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो हम लोग डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो भी पॉइंट्स, जो भी आइटम्स एडजस्ट होते हैं उनको हम लोग शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं. व्हेन वी प्रिपेयर्ड डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस कैपिटल. देयर आफ्टर वी राइट डाउन हिज शेयर ऑफ रिजर्व. अगर कोई रिज़र्व बैलेंस शीट में है तो वो रिज़र्व भी उसको मिलता है, और किस रेशो मिलता है, उसके ओल्ड रेशो में मिलता है. बट यू नो कि उसके पास एक ही रेशियो होगा क्योंकि वो डाइड हो रहा है, तो नए फॉर्म में तो वो एग्जिस्ट करेगा नहीं. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से हम उसको प्रॉफिट देंगे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, एंड दिस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड आइदर बाई टाइम मेथड और टर्नओवर मेथड. Hence, as next is old partner's capital, that is gaining ratio. This is adjusted for two purpose, that is for profit and that is for goodwill. You know very well कि जब कोई पार्टनर डाइज करता है, सो कॉन्टेनिंग पार्टनर उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं अपने गेनिंग रेशियो में, जिसे हम गुडविल कहते हैं. एज वेल एज पीएल सस्पेंस की जगह हम लोग गुडविल की तरह ट्रीटमेंट भी करते हैं प्रॉफिट की. जैसा मैंने आपको बताया कि पीएल सस्पेंस का यूज़ हम लोग तब करेंगे प्रॉफिट को प्रोवाइड करने के लिए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो प्रॉफिट को भी हम लोग एज इट इज़ वैसे ही प्रोवाइड करेंगे जैसे गुडविल को देते हैं, यानी ओल्ड पार्टनर्स ही देंगे अपने गेनिंग रेशियो में. सो पीएल सस्पेंस तब देंगे जब पीएसआर चेंज नहीं होगा, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब क्रेडिट करेंगे, एक तो गुडविल की तरह करेंगे गुडविल के लिए, और एक प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट के लिए डिनोट करेंगे जब पीएसआर चेंज हो जाएगा. और नेक्स्ट इज़ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है बैलेंस शीट में तो उसके लिए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करता है फर्म जब कोई पार्टनर डेथ करता है. कब से कब तक, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ. नेक्स्ट, ये सारे आइटम्स क्रेडिट होते हैं यानी उसकी कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं. एंड दिस टाइप्स ऑप्शंस, दिस काइंड ऑफ थिंग्स रिड्यूस दी पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज़ गुडविल रिटन ऑफ. यू नो वेरी वेल, अगर बैलेंस शीट के एसेट्स में ऑलरेडी पहले से कोई गुडविल है तो वो उसको भी राइट ऑफ करने को मिलेगा. किस रेशो में, ओल्ड रेशो में. मैं बार बार ओल्ड रेशो बोल रहा हूँ, बट आप कंफ्यूज मत हुए. कोई पार्टनर डेथ करेगा तो उसका कोई नया रेशो होगा ही नहीं, सो जो रेशो दिया है उसी रेशो में उसको राइट ऑफ कर देंगे. जैसे ए का इसमें 5/10 था और गुडविल कोई होती तो उसको हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उतने ही महीने के लिए चार्ज होगा जितने महीने के लिए वो फॉर्म में होगा, दैट इज़ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंट ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ. एंड थर्ड लास्ट सेकेंड पॉइंट इज अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर is must
ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी जो डिसीज पार्टनर को हमें कैपिटल देनी है, जो ड्यूज़ देनी है, वो हम उसको ना देके बल्कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट से हम या तो उसको कैश में पे करेंगे या फिर आइदर उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, सो बेसिकली आज हम लोगों ने डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया कि कोई पार्टनर डेथ करता है तो उस सिचुएशन में हम उसकी कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो आई होप यू कैन easily understand today's topic. Apart from this, if you have any kind of doubt relating to this topic, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.